Okay. So this one is a combined class of 7B and 7C, two sections. Yes, sir. 7B and C. Okay. Now, 7C students, do I have another period in your class today? No, sir. No, this is the only one. No. Okay. Okay, let's start then. We were in yesterday's class, we were discussing about simple interest. We were discussing about the banking system. बैंकिंग के बारे में बात कर रहे थे हम. Okay, so you all came to know that the main source of income for banks is loans. ठीक है, ये आपको कल समझ में आ गया होगा. समझ में आया नहीं आया कल कि Yes, लोन sir. क्या है चक्कर Yes, क्या? sir. They take a very high interest when they give loan, and when you take you invest your money in banks, the rate of interest is very low. It is on the lower side. Whereas when you take loan from the bank, when they give you the money, when you borrow the money from bank, then in return they take uh, loans at very high rates. Okay, they take the interest at very high rate. So can you repeat the page number, sir, please? पेज नंबर तो हमने कोई ऐसा स्टार्ट नहीं कराया अभी. We are starting with chapter simple interest, which is on page number Good morning, sir. 160, 163. 161. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ. और सबसे पहले तो ये बताते हैं हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट की. कौन सा बैंक हमको, फॉर एग्जांपल कोई बैंक हमको अगर इंटरेस्ट दे रहा है तो कैसे अपने इंटरेस्ट को कैलकुलेट करता है. So this chapter is all about that only. If you're getting interest on your investment in the bank, how do the banks calculate the interest, and how do you get it? So first of all, I'm not starting the main topic right now. This is just for explanation about the basic of the chapter. Okay. मैंने अब you don't have to note down anything right now. देखिए, for example, suppose any one of you goes to the bank, go to the bank, and you invested rupees 10,000 today in the bank. आपने 10,000 rupees बैंक में invest कर दिए, and the bank told you that Sir, we will investing give you means interest. deposit. हाँ जी, Sir, ready? investing means deposit. हाँ, deposit करना. You deposited this much amount in bank, Okay, invest sir. कर दिया, deposit कर दिया, ठीक है. So you deposited rupees 10,000 in the bank, and the bank told you that we will give you, for example, the bank told you that they will give you an interest of 5% per year. 5% per year. Per year या फिर per annum. Per annum. Annum is a word also used for year. Okay.
यहाँ पर आपको कई जगह एनम वर्ड का यूज दिखेगा, एनम वर्ड बहुत सी जगह दिखेगा आपको इन द चैप्टर। तो 5% पर एनम के रेट से मुझे इंटरेस्ट देना है, इसका मीनिंग क्या है? पहली बात तो क्या मीनिंग है सर? सपोज इफ आई इन्वेस्टेड माय मनी फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए मैं अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कैसे निकालूंगा मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? मैं अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ, कैसे होगा? आई विल गेट 5% ऑफ दिस अमाउंट, जो मैंने अमाउंट, Sir, 5% of 10,000. जो my amount मैंने, the money that I deposited in the bank, I will get 5% of this extra, इतना मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा। That means 5 upon 100 of 5% of 10,000। 10,000. So if you calculate this, you get 500। 500. तो आपको 500 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यानी कि टोटल मनी मेरा कितना हो गया? टोटल अमाउंट कितना हो गया मेरे पास? टोटल कितना आ गया? 10,000 तो पहले से ही था, प्लस 500 और मिल गए, 10,500. 10,500 is my Sir, excuse me. total. Yes, Sir, we are doing the interest formula 5 upon 100 of 10,000. Okay, sir. Sir, if there is a different situation, sir, is there any different situation in which we have to put 1,000 under 5 or always 100 under 5? नहीं बेटा, ये यही करते हैं, 5% ऑफ 10,000 निकालते हैं। ठीक है, वी आर कैलकुलेटिंग 5% ऑफ 10,000। ये हमने परसेंटेज चैप्टर में सीखा था। Okay, sir. परसेंटेज Okay, चैप्टर एक बार आप सही से okay. पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट वी आर डूइंग। Okay, sir. मैं यहाँ पे ऑल ऑफ यू आर यू एबल टू अंडरस्टैंड मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज, और कुछ नया तो यूज नहीं कर रहा हूँ। 5% ऑफ 10,000, ये आप सबको समझ में आ रहा है कि मैं अपना इंटरेस्ट निकालने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी मुझे मिलने वाला है, इस रेट से मिलेगा। मुझे बैंक ने बोला यू विल गेट 5% एक्स्ट्रा मनी पर एनम, हर साल आपको 5% एक्स्ट्रा मनी देंगे हम, अगर आप हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो। 5% ऑफ 10,000 मैंने निकाल लिया, मुझे 500 रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए। यानी कि एक साल बाद जब मैं बैंक से बाहर निकलूंगा अपना पैसा लेकर के, तो मेरे पास कितने रुपीज होंगे? 10,500 रुपीज होंगे। ओके, ये तो 1 ईयर की बात हो गई। अगर 2 इयर्स की बात करें, मैंने मान लीजिए 1 ईयर की जगह 2 इयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया बैंक में। सपोज इफ आई इन्वेस्ट माय मनी फॉर 2 इयर्स, तो मुझे क्या होगा? जो भी एक ईयर का इंटरेस्ट आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5% ऑफ 10,000। 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना है? 5% ऑफ 10,000। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 500 आया था, याद है आपको? 500 So आई then it थी। will be 1,000. 500 into 2 कितना मिल गया मुझे? एक 2 इयर्स के बाद मेरे पास 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए। दैट मींस टोटल कितना हो गया? 10,000 10,000, प्लस 10,000, 1,000, 11,000. 11,000। 11,000. अगर 2 इयर्स के बाद की बात करें तो मेरे पास 11,000 रुपीज बताएंगे। ठीक है, तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का। अभी ये तो हम क्या कर रहे हैं? परसेंटेज का लॉजिक पूरा यूज कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा है। मैं सिंपली आई एम यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ऑल द मेथड्स दैट वी हैव लर्नड इन द चैप्टर परसेंटेज, सिर्फ वही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इफ यू go through the chapter you will see that there is a formula also to calculate this, वो हम अभी पढ़ेंगे क्या होता है formula। So first of all we are just trying to understand the logic of the chapter। So एक चीज और है, ठीक है, बैंक जो है अपनी जगह सही है कि वो मुझे 5% इंटरेस्ट पर एनम दे रहा है, लेकिन मैं जो हूँ मैं थोड़ा सा चालाक हूँ, बैंक से जो थोड़ा चालाक आदमी हूँ, बहुत चालाक आदमी हूँ। मैंने क्या करा देखिए, अब आप मेरी चालाकी को पकड़िएगा, मैं कुछ करने वाला हूँ यहाँ पर। देखिए,
दो बंदे हैं, एक तो मेरा कोई दोस्त है, उसने सपोज बैंक ए में अपना मनी डिपॉजिट कर दिया, 5% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक मनी, सॉरी बैंक ए जो है, दे आर गिविंग इंटरेस्ट 5% रेट से इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो उसने बंदे ने, my friend deposited his money in bank A for 2 years and he got 1000 of interest, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो उसको टोटल अमाउंट कितना बन गया था उसका? फाइनली he got, what was the total? Yes, 11,000 रुपीज हुए थे अभी। 10,000 रुपीज उसने Yes, sir. डिपॉजिट करे। 11,000 rupees Yes. total. हाँ, total was 11,000 rupees. He deposited 10,000 rupees, 5% इंटरेस्ट मिल रहा था, और 2 years के बाद उसको कितने रुपीज मिले? 11,000। ठीक है, मैंने क्या करा, मैं अपने रुपीज लेकर के बैंक ए में चला गया। ये है बैंक ए, बैंक ए में मैंने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करे, डिपॉजिट कर दिए, डिपॉजिट किए मतलब 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए एंड आई गॉट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम, मुझे भी इतना इंटरेस्ट देंगे मैंने, लेकिन यहाँ पे 1 ईयर के लिए किया। 1 ईयर में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 500 So 500. 10,500 total. टोटल कितने हो गए? 10,500। 500 रुपीज का इंटरेस्ट मिल गया, टोटल हो गए 10,500, ये हो गया टोटल। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने अपना, मेरे पास भी 2 साल का टाइम था, मैंने थोड़े चालाकी दिखाई। मैंने क्या करा, 1 ईयर के बाद बैंक से पैसे बाहर निकाल दिए। मैंने कहा मुझे डिपॉजिट नहीं करना आपके बैंक में, आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। ठीक है, तो उन्होंने दे रिटर्न मी द मनी एंड मेरे को कितने मिले? 10,500 रुपीज मिल गए वापस। ओके, ये मेरा अमाउंट है। अब मैं यहाँ से निकला, बैंक से, बैंक ए से बाहर निकला, बैंक बी के अंदर घुस गया मैं। बहुत चला, तो देखना क्या चालाकी करी है। बैंक बी में चला गया, बैंक बी में मेरे पास कितने रुपए लेके गया मैं? स्टार्टिंग में लेके गया रुपीज 10,000। 10,500. 10,500. कितने तो रुपीज सर में? बैंक भी आपको 5% देगा 10,500 का। जी, 5% पर एनम मुझे ये लोग भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, इन्होंने भी इतना ही दिया, इन्होंने भी इतना ही दिया। यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो 1 ईयर यहाँ पर हो गया, 1 ईयर यहाँ पर हो गया, टोटल 2 ईयर्स हो गए, 1 ईयर प्लस 1 ईयर। अब यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलेगा निकाल देते हैं। 5% ऑफ 10,500। 10,500. 500. That ये 2 जीरोस कट गए। 5 into 105 कितने हो गए? 525, am I right? 525 हो गए। टोटल मेरा कितना हो गया जब मैंने बैंक से बाहर सर निकला? 25 rupees extra. एक साल 25 extra. 10,500 प्लस 525 इंटरेस्ट और ऐड हो जाएगा, इसमें कितने हो गए मेरे पास? 11,025. 11,025 रुपीज। 11,025 रुपीज, 25 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हो गया। इनके पास थे 11,000 2 साल के बाद, मेरे पास कितने हैं 2 साल के बाद? 11,025। 25. कमाल है, तरीका सही है मेरा। Yes, sir. Yes. ऐसे ही करोगे बैंक में? सर अपने दोस्त से ज्यादा ना सर, ऐसा करेंगे नहीं। क्यों ऐसे क्यों नहीं करोगे? ये तो अभी 10,000 रुपीज है, मान लो 10 लाख रुपीज तुमने इन्वेस्ट करे, तो 10,000 की जगह 10 लाख पे तुम्हें 2,500 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और अगर 10 करोड़ कर दिए तो 2,50,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। नहीं करोगे ऐसे? सर करेंगे सर। करोगे? सर नहीं करेंगे सर। करेंगे। जाएंगे तो तभी नहीं करोगे। चलिए, let me tell you what is this? This is, सर मैंने क्या किसी करा? को नहीं तो चाहिए।
मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने सिंपल इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज कर दिया। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। किसी को मालूम है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होना है किसी को? सर सुना है लेकिन करा नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे अभी। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया मैंने। तो दिस इज द बेसिक ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैंने आपको क्लास 7 में बता दिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आपका पिछले ईयर का टोटल बन के आया था, इसको बोलते हैं अमाउंट। तो टोटल बन के आता है आफ्टर एडिंग द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसमें ऐड हो जाएगा, जो आपने डिपॉजिट करा मनी उसमें इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, और उसका जो अमाउंट आया आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मेरी चालाकी क्या थी, मैंने अपने 1 ईयर के अमाउंट को प्रिंसिपल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब डिपॉजिट मनी में कन्वर्ट। प्रिंसिपल क्या होते हैं, द मनी दैट यू हैव डिपॉजिटेड। प्रिंसिपल क्या चीज होती है, जो मनी आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं। सो दिस इज द प्रिंसिपल इन द फर्स्ट केस। बैंक ए के लिए प्रिंसिपल क्या है, 10,000 है। अमाउंट कितना बना, 10,500। अब मैं बैंक बी में जब पैसे इन्वेस्ट करूंगा, देन 10,500 विल बिकम द प्रिंसिपल एंड उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फाइनली अमाउंट इतना आया। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था, जो पहले बंदे ने जो करा था यहाँ पे, उसके केस में क्या हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो आप स्टार्टिंग में मनी इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करें, तो चाहे 2 साल के लिए करें या 5 साल के लिए करें या 6 साल के लिए करें, सिंपल इंटरेस्ट अगर है तो क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर में जो आपने मनी डिपॉजिट करा है वही मनी आपका हर ईयर के लिए प्रिंसिपल माना जाएगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट में थोड़ा सा लॉस होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फायदा होता है, क्या होता है कि जो आपका लास्ट ईयर का जो अमाउंट बन के आया वो अगले ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है अपने आप। तो ये फैसिलिटी बैंक्स अपने आप ही प्रोवाइड करते हैं, आपको बैंक बदलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चालाकी करने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग में शायद बहुत शुरू में कभी ऐसा हुआ होगा कि जब बैंक्स का जो ट्रेंड है वो चला होगा, तो हो सकता है वहां पर सिंपल इंटरेस्ट वाला तरीका चलता हो, लेकिन अब सब जगह कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से ही काम किया जाता है बैंक में। क्या होता है, the amount after first year is considered as the principal for the second year. तो बैंक खुद कहता है, you don't withdraw money from our bank, आपका जो अमाउंट बनेगा हम उसी को प्रिंसिपल मान करके नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है आपका वो कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Okay, sir. यस सर। Yes, sir. सर अकाउंट इसका पूरा चैप्टर होता है ना? हाँ, ये सब आप उसमें पढ़ेंगे कि कॉमर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ये सारी चीजें और डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा। तो आई एम नॉट ए स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, मैं तो साइंस साइड से था, मुझे फिर भी इतनी डिटेल में नहीं मालूम होगा। आई थिंक जो कॉमर्स के टीचर्स होते हैं उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा, मतलब मुझसे तो ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे फिर भी थोड़ा बहुत हम पता है। बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे ये तो एक बहुत कॉमन सी सिंपल सी चीज है। तो आइए हम बात करते हैं the terms which are related to all these things। तो पहले तो हम टर्म समझ लेते हैं, फिर हम फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके बाद। डोंट राइट एनीथिंग, मैं फिर से बस सिर्फ नोट करवा रहा हूँ। अच्छा चलिए, लेट्स राइट द फॉर्मूला। मैं बता दूंगा कौन सी चीज क्या होती है। राइट डाउन द हेडिंग सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला। लेट्स इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला। Sir, but we have not completed chapter percentage. I know that chapter will be डन। थोड़ा पेजेस छोड़ दो उसके लिए। कितने क्वेश्चन बचे हैं आपकी क्लास में? So 7. हाँ, तो लीव 4 pages for it. Okay, sir. Okay, we will complete the chapter in some other class.
Okay. So simple interest formula. Write down the heading. Simple interest formula. क्या होता है? SI मतलब simple interest is equal to P into R into T upon 100. This is the formula. Note down in your copies. P into R into T upon 100. Sir, done. Sir, done. Sir, done. Sir, what does T stands here? हाँ वही सब बता रहा हूँ. Where Sir, principal. now after this you have to note down. Yes. Where P is principal, P is the principal, R is the Sir, I am asking for T. T is time period. R is rate of interest. Okay, sir. T is time period. The time period for which you have invested the money. तो मैं बताता हूँ बहुत सिंपल सी चीजें हैं. Sir, what is the meaning of SI simple interest? हाँ सिंपल इंटरेस्ट SI. SI की फुल फॉर्म हो गई सिंपल इंटरेस्ट. Sir, done. Okay, पहले let's understand what is principal. Principal, suppose you are depositing your money in the bank. So the amount that you have deposited, the money that you have deposited in the bank, that is known as principal. Clear है? Principal बहुत सिंपल सी चीज है. जितने पैसे आप बैंक में लेके गए हैं डिपॉजिट करने, that is known as principal. ठीक है? जरूरी नहीं है कि बैंक से ही मिले इंटरेस्ट. हो सकता है कभी-कभी क्या Okay, होता है sir. कि किसी जानने वाले से भी इंसान लोन ले लेता है या उसको दे देता है लोन ऐसे. तो वो लोग भी आपस में, ऑल्दो दिस इज नॉट लीगल, ये लीगल चीज नहीं है. तो वो क्या हुआ, वो जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे किसी ने मनी बोरो कर लिया, तो जितने रुपीस उसने बोरो किए हैं मेरे से, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रिंसिपल. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा व्हेन यू डिपॉजिटेड योर मनी इन द बैंक. तो किस रेट से मनी मुझे एक्स्ट्रा मनी मिलेगा यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी कि 5% इस तरीके से होता है, 5% पर ईयर और 10% पर ईयर. हो सकता है पर ईयर की जगह मंथ वाइज भी हो, ऐसा कुछ हो सकता है, या क्वार्टरली मिल रहा हो. तो ऑल दीस थिंग्स आर देयर. टाइम पीरियड क्या होता है, फॉर हाउ मच टाइम पीरियड यू हैव इन्वेस्टेड द मनी इन द बैंक. फॉर एग्जाम्पल आपने 3 इयर्स के लिए मनी डिपॉजिट करा बैंक में, तो टाइम पीरियड की वैल्यू 3 हो जाएगी. टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3. 2 इयर्स के लिए करा मनी डिपॉजिट, तो टी कितना हो जाएगा 2 इयर्स हो जाएगा. ओके, so these things are there. Now
Let's start with the question. अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर, अमाउंट क्या होता है, एक और फॉर्मूला लिख लीजिए। अमाउंट इज कि आपका जो मनी प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हाँ, दोनों को अगर मिक्स कर देंगे, दोनों को, प्रिंसिपल जो आपने मनी डिपॉजिट करा उसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा मनी यानी कि इंटरेस्ट मिला, उन दोनों को ऐड करके जो टोटल रुपीस आपके पास हो गए, दैट इज नोन एज अमाउंट। तो अमाउंट इज P plus SI। अमाउंट को A से रिप्रेजेंट भी करते हैं। अमाउंट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय A। अमाउंट इज इक्वल टू P plus SI। ओके, ये एक और चीज है यहाँ पे पढ़ने वाली। सर ये जो लोन का पैसा देते हैं, इसे कहाँ से देते हैं? बैंक? लोन का पैसा देते हैं, इनके पास बहुत सारा पैसा होता है बैंक के पास, आप लोगों ने डिपॉजिट करा है नहीं करा है, उसी में से देते हैं। यस सर। तो सर वो अपना पैसा देते हैं या दूसरों को डिपॉजिट कर रखा है उसका नहीं, देते ऐसा हैं? कुछ नहीं है, पैसा तो पैसा है, किसी का सर नाम जो हम इंटरेस्ट देते हैं सर उसमें से देते हैं। देखो मेरी बात सुनो, देखो लिसन। यस सर। सपोज यू इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज, आज आपने 2 लाख रुपीज दिए, एंड मान लीजिए आपने 500 के नोट्स दिए थे 2 लाख। तो ये 500 के जो नोट्स दिए उसका डिटेल्स जो है कि यू हैव इन्वेस्टेड 2 लाख रुपीज इन द बैंक, उसकी डिटेल्स कंप्यूटर में उनके सिस्टम में अपलोड कर दी जाती है कि सो एंड सो मिस्टर XYZ हैज डिपॉजिटेड 2 लाख रुपीज इन आवर बैंक, उसकी डिटेल्स कंप्यूटर में फीड हो जाएंगी। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि जो 2 लाख रुपीज 500 के नोट जो आपने दिए वो आपके ही होंगे, वो उसको कोई और हाथ नहीं लगाएगा। तो वो जब इफ यू विड्रॉ योर मनी, जब आप वापस निकालेंगे तो सेम वही 500 वाले नोट्स थोड़े मिलेंगे। हो सकता है कि दूसरे 500 के नोट्स मिले, हो सकता है 2000 के नोट्स मिल जाए, हो सकता है 100 के नोट्स मिले आपको। तो इसका मतलब डिपॉजिट करने का मतलब ये नहीं कि वही वो जो पैसा आपने डिपॉजिट करा वो आपका एक अलग कोने में पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। सो मनी इन्वेस्ट हो गया, बस उसकी डिटेल्स आपकी कंप्यूटर में नोट हो जाएंगी कि ये सो एंड सो पर्सन हैज डिपॉजिटेड इतना मनी। अब पैसा तो सारा एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा, चाहे किसका भी हो। ओके, ऑल द मनी विल बी कलेक्टेड एट वन प्लेस, एंड फिर समझ लीजिए किसी ने अगर विड्रॉ करा तो किसी का भी जो नोट्स, जिसके भी नोट्स अगर आए थे तो वो किसी और के पास चले जाएंगे, किसी और के पास चले जाएंगे, बस डिटेल्स Sir, में। if someone leaves the bank, then from where we get our money back? सॉरी, सर बैंक में चोरी हो गई तो बैंक में जो हमारा पैसा वो मिलेगा कैसे? बैंक में चोरी सिर्फ मूवीज में होती है। Okay. Actually, they have first of all they have their guards at the banks। वहाँ पे guards होते हैं with guns, and they are allowed to fire those guns in such cases। उनके पास परमिशन होती है कि अगर भाई चोरी डकैती के लिए कुछ हो तो आप गोली चला दीजिए, कोई डरने वाली बात नहीं है। सेकंड थिंग, दे आर सेफ, जो जिस उनके पास सेफ होती हैं, बड़े बड़े लॉकर्स होते हैं, दोज आर ऑफ वेरी वेरी गुड क्वालिटी। कोई भी बंदा आकर के उनको ऐसे खोलना इम्पॉसिबल है उनके लिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। वो मूवीज में हो जाती हैं चोरी, बैंक में, मूवीज में डकैती पड़ गई हो गया। एटीएम्स में हम देखते हैं कि कई बार एटीएम में आपने देखा होगा न्यूज वगैरह में कि एटीएम में आकर के किसी ने चोरी कर ली, कैमरे पे पहले, एटीएम उठा कर ले जाते लोग। हाँ पकड़े भी जाते हैं फिर कभी। एंड लेकिन वो क्या है, बैंक का ही नुकसान होता है, उसमें और क्या। एंड दे हैव आल्सो हैव इंश्योरेंस। तो गवर्नमेंट का भी जैसे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, देन गवर्नमेंट विल पे फॉर दैट बिकॉज दे हैव इंश्योर्ड। ओके, इंश्योरेंस कंपनी विल पे।
ऐसा भी होता है मतलब। ओके सर। Okay, so formula we have written. Let's start with the exercise. In the exercise, we will be doing exercise 12A. We will be doing only till question number 15. 15 के आगे के हम नहीं करेंगे because syllabus थोड़ा आपका पीछे है. We will learn the concept of the chapter and till question 15 only we will be doing. उसके बाद नहीं करेंगे. Okay. That means वो आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चन नहीं आएंगे. क्वेश्चन 15 के आगे. Okay. So question number 1. यहाँ पर आपसे क्या है? Principal is given, rate of interest is given, time period is given. You have to calculate the simple interest and amount. सब कुछ यहाँ पे given है. Principal is rupees 6,400. Rate of interest is rupees 8% per annum. Per annum मतलब एक साल में 8% का इंटरेस्ट मिलेगा. Okay. And the time period is 2 years. Rate of interest 8 है, 6 है, 6. It is 6% rate of interest. And the time is 2 years. SI equals to, use the formula P into R into T upon 100. This is the formula. So SI is equal to 6,400 into 6 into 2. What is the rate of interest? 6. What is the value of time period? 2 years. Full upon 100. Those zeros cut गए. So 64 into 12. 128 into 6. 128, 256 into 3. ISO 50 plus 18. Is it rupees 768? 68. 768 आ रहा है. Amount. Calculate the amount also. P plus Yes, SI. sir, 68. So what is the amount? Total amount कितना हो जाएगा? 6,400. Principal is 6,400 and SI is 768. So what do you get? 7,168. 7,168 rupees. Amount. Answer. Simple interest and amount. Clear? Yes, sir, 7,168 is the answer. Done? All of you? Yes, sir, done. Yes, sir, done.
Second question. So less than 1 minute is left. Okay. So we will do the second one tomorrow. Day after tomorrow. Okay, sir. That is it for today. Thank you.